أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم سورہ آل عمران ترجمہ تفسیر 70واں رکوع اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اے ایمان والوں، ان کافروں یعنی ابن ابی وغیرہ دوگلی پرورتی والے لوگ کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے اور اس سفر میں مر گئے یا جہاد میں شہید ہو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے اور اللہ ذلاتا اور مارتا ہے۔ موت اور زندگی اسی کے اختیار میں ہے، چاہے تو مسافر اور غازی کو سلامت لائے اور سرکشت گھر میں بیٹھے ہوئے کو موت دے۔ ان منافقوں کے پاس بیٹھے رہنا کیا کسی کو موت سے بچا سکتا ہے؟ اور جہاد میں جانے سے کب موت لازم ہے؟ اور اگر آدمی جہاد میں مارا جائے تو وہ موت گھر کی موت سے کہیں زیادہ اچھی ہے۔ لہذا منافقوں کا یہ قول باطل اور خالی دھوکہ ہے، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے نفرت دلانا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ اور مان لو وہ صورت پیش ہی آ جاتی ہے جس کا تمہیں ڈر دلایا جاتا ہے، تو اللہ کی بخشش، انعام اور رحمت جو خدا کی راہ میں مرنے پر حاصل ہوتی ہے ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے۔ اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو اللہ کی طرف اٹھنا ہے۔ یہاں بندگی کے درجوں میں سے تینوں درجوں کا بیان فرمایا گیا۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ بندہ دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرے تو اس کو دوزخ کے عذاب سے امن دیا جاتا ہے۔ اسی طرف لمغفرتم من اللہ تو اللہ کی بخشش میں اشارہ ہے۔ دوسری قسم وہ بندے ہیں جو جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف وہ رحمتن اور رحمت میں اشارہ ہے کیونکہ رحمت بھی جنت کا ایک نام ہے۔ تیسری قسم وہ مخلص بندے ہیں جو اللہ کے عشق اور اس کی پاک ذات سے محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا لکشیہ اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے دائرے میں اپنی تجلیہ پرکاش سے نوازے گا۔ اس کی طرف لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تو اللہ کی طرف اٹھنا ہے میں اشارہ ہے۔ تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے اور آپ کے مجاز میں اس درجہ لطف و کرم اور مہربانی اور رحمت ہوئی کہ احد کے دن غصہ نہ فرمایا، اور اگر تم تند مزاج کرود و سوبھاؤ سخت دل ہوتے اور سختی اور دباؤ سے کام لیتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو کہ اس میں ان کا دل رکھنا بھی ہے اور ستکار بھی، اور یہ فائدہ بھی کہ صلاح و مشورہ سنت ہو جائے گا اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے گی۔ مشورہ کے معنی ہے کہ کام میں رائے لینا، اس سے اجتہاد کا جائز ہونا اور قیاس کا ترک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مدارک و خاجن
और जो किसी बात का इरादा पक्का कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। तवक्कुल के मानी है अल्लाह ताला पर भरोसा करना और कामों को उसके हवाले कर देना। उद्देश्य यह है कि बंदे का भरोसा तमाम कामों में अल्लाह पर होना चाहिए। इससे मालूम हुआ कि मशवरा तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। बेशक तवक्कुल भरोसा करने वाले अल्लाह को प्यारे हैं, और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। और अल्लाह की मदद वही पाता है जो अपनी शक्ति और ताकत पर भरोसा नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत और रहमत का अभिलाषी रहता है। और अगर वह तुम्हें छोड़ दे तो ऐसा कौन है जो फिर तुम्हारी मदद करे। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए, और किसी नबी पर यह गुमान नहीं हो सकता कि वह कुछ छुपा रखे, क्योंकि यह नबुव्वत यानी नबी होने की शान के खिलाफ है, और सारे नबी मासूम हैं, उनसे ऐसा संभव नहीं, न वही देव वाणी में न गैर वही में। और जो कोई व्यक्ति कुछ छुपा रखे उसका हुक्म इसी आयत में आगे बयान फरमाया जाता है। और जो छुपा रखे वह कयामत के दिन अपनी छुपाई चीज लेकर आएगा, फिर हर जान को उनकी कमाई भरपूर दी जाएगी और उन पर जुल्म न होगा। तो क्या जो अल्लाह की मर्जी पर चला और उसकी आज्ञा की अवहेलना से बचा, जैसे कि मुहाजिर और अंसार और उम्मत के नेक लोग, वह उस जैसा होगा जिसने अल्लाह का गजब प्रकोप ओढ़ा, यानी अल्लाह का नाफरमान हुआ, जैसे कि दोगली प्रवृत्ति वाले मुनाफिक और काफिर। और उसका ठिकाना जहन्नम है, और क्या बुरी जगह पलटने की। वो अल्लाह के यहाँ दर्जा दर्जा है, हर एक का दर्जा और उसका स्थान अलग, नेक का अलग, बुरे का अलग, और अल्लाह उनके काम देखता है। बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ। मन्नत बड़ी नेमत को कहते हैं, और बेशक सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल बनकर तशरीफ लाना एक बड़ी नेमत है, क्योंकि आदमी की पैदाइश जिहालत, नासमझी और कम अक्ली पर है, तो अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें भेजकर उन्हें गुमराही से रिहाई दी, और हुजूर की बदौलत उन्हें दृष्टि प्रदान करके जिहालत या अज्ञानता से निकाला, और आपके सदके में सीधी सच्ची राह दिखाई, और आपके तुफैल में अनगिनत नेमतें अता की मुसलमानों पर की, उनमें उन्हीं में से, यानी उनके हाल पर मेहरबानी और अनुकंपा फरमाने वाला, और उनके लिए गौरव और इज्जत का कारण, जिसकी पाकबाजी, सच्चाई, ईमानदारी और सदव्यवहार से वो परिचित हैं। एक रसूल सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक करता है, और उसकी किताब कुरान मजीद उनको सुनाता है, इसके बावजूद कि उनके कान पहले कभी अल्लाह के कलाम या देववाणी से परिचित न हुए थे, और उन्हें पाक करता है कुफ्र और गुमराही और गुनाहों की प्रवृत्ति और दुर्व्यवहार और बुरी आदतों से, और उन्हें किताब व हिकमत बोध सिखाता है, और नफ्स की जानने और अमल करने दोनों क्षमताओं को संपूर्ण करता है। और वो जरूर इससे पहले खुली गुमराही में थे कि सत्य और असत्य, भलाई और बुराई में पहचान न रखते थे, और जिहालत और दिल के अंधेपन में गिरफ्तार थे। क्या जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे, जैसी कि उहद की लड़ाई में पहुंची, कि तुम में से 70 कत्ल हुए, कि उससे दूनी तुम पहुंचा चुके हो, बद्र में कि तुम में 70 को कत्ल किया, 70 को बंदी बनाया, तो कहने लगो कि ये कहां से आई और क्यों पहुंची, जब कि हम मुसलमान हैं और हम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। तुम फरमा दो कि वह तुम्हारी ही तरफ से आई, कि तुमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के खिलाफ मदीना तैयबा से बाहर निकलकर जंग करने पर जोर दिया, फिर वहां पहुंचने के बाद हुजूर के सख्त मना फरमाने के बावजूद लूट के माल के लिए अपनी जगह छोड़ी। यह कारण तुम्हारे कत्ल और पराजय का हुआ। बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। और मुसीबत जो तुम पर आई उहद में, जिस दिन 2 फौजें ईमान वालों और मुशरिकों की मिली थीं, वह अल्लाह के हुक्म से थी, और इसलिए कि पहचान करा दे ईमान वालों की, और इसलिए कि पहचान करा दे उनकी जो मुनाफिक दोगले हुए, यानी ईमान वालों और दोगली प्रवृत्ति वाले यानी मुनाफिक छिप गए, और उनसे यानी अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल वगैरह मुनाफिकों से कहा गया कि आओ मुसलमानों की संख्या बढ़ाओ, दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह की राह में लड़ो या दुश्मन को हटाओ, अपने घर और माल को बचाने के लिए। बोले अगर हम लड़ाई होती जानते तो जरूर तुम्हारा साथ देते,
और इस दिन जाहिरी ईमान के मुकाबले में खुले कुफ्र से ज्यादा करीब हैं। अपने अपने मुंह से कहते हैं जो उनके दिल में नहीं, और अल्लाह को मालूम है जो छुपा रहे हैं। यानी दोहरी प्रवृत्ति, जबान पर कुछ, दिल में कुछ। वो जिन्होंने अपने भाइयों के बारे यानी उहद के शहीद जो वंश के हिसाब से उनके भाई थे, उनके हक में अब्दुल्लाह बिन उबई वगैरह मुनाफिकों ने में कहा और आप बैठ रहे कि वो हमारा कहा मानते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में न जाते या वहां से फिर आते तो न मारे जाते। तुम फरमाओ तो अपनी ही मौत टाल दो अगर सच्चे हो। रिवायत है कि जिस रोज मुनाफिकों ने यह बात कही उसी दिन 70 मुनाफिक मर गए और जो अल्लाह की राह में मारे गए। अक्सर मुफस्सिरों का कौल है कि यह आयत उहद के शहीदों के बारे में उतरी। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे भाई उहद में शहीद हुए अल्लाह ताला ने उनकी रूहों को हरी चिड़ियों के जिस्म अता फरमाए। वो जन्नती नहरों पर सैर करते फिरते हैं, जन्नती मेवे खाते हैं। जब उन्होंने खाने पीने रहने के पाकीज़ा ऐश पाए तो कहा कि हमारे भाइयों को कौन खबर दे कि हम जन्नत में जिंदा हैं, ताकि वो जन्नत से बेरब्ती न करें और जंग से बैठ न रहें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उन्हें तुम्हारी खबर पहुंचाऊंगा। फिर यह आयत उतरी। अबू दाऊद। इससे साबित हुआ कि रूहें बाकी हैं, जिस्म के नष्ट होने के साथ नष्ट नहीं होती। कभी उन्हें मुर्दा ख्याल न करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रोजी पाते हैं और जिंदों की तरह खाते पीते ऐश करते हैं। आयत की पृष्ठभूमि इस बात को जाहिर करती है कि जिंदगी रूह और जिस्म दोनों के लिए है। उल्मा ने फरमाया कि शहीदों के जिस्म कब्रों में महफूज रहते हैं, मिट्टी उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। और सहाबा के जमाने में और उसके बाद अक्सर यह देखा गया है कि अगर कभी शहीदों की कब्रें खुल गई तो उनके जिस्म ताजा पाए गए। खाजिन वगैरह शाद प्रसन्न है उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल कृपा से दिया। फजल और करामत और इनाम व एहसान, मौत के बाद जिंदगी दी, अपना मुकर्रब यानी प्रिय किया, जन्नत का रिज्क और उसकी नेमतें अता फरमाई और इन मंजिलों के हासिल करने के लिए शहादत की तौफीक दी और खुशियां मना रहे हैं अपने पिछलों की जो अभी उनसे न मिले और दुनिया में ईमान और तकवा पर हैं। जब शहीद होंगे उनके साथ मिलेंगे और कयामत के दिन अमन और चैन के साथ उठाए जाएंगे कि उन पर न कुछ अंदेशा डर है और न कुछ गम। खुशियां मनाते हैं अल्लाह की नेमत और फजल की, और यह कि अल्लाह जाया नष्ट नहीं करता अजर इनाम मुसलमानों का। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है, हुजूर ने फरमाया, जिस किसी को खुदा की राह में जख्म लगा वह कयामत के दिन वैसा ही आएगा जैसा जख्म लगने के वक्त था। उसके खून की खुशबू कस्तूरी की होगी और रंग खून का। तिरमिजी और नसाई की हदीस में है कि शहीद को कत्ल से तकलीफ नहीं होती मगर ऐसी जैसी किसी को एक खराश लगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, शहीद के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं सिवाय कर्ज के। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।